ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਤਨੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਫਲਸਫੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਬਿਆ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਚੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਨ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਬੇਵਕੂਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਨੂੰ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ।
मैं हुक्म दिता है कि दुकान बंद कर दी जाए, पर गल यह है हट खुल गई बाबे नानक दी, सौदा लैणगे नसीबां वाले। ये हट सदीवी है, ये जुगो जुग अटल है, इनू दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। पर उस दिन तो बाद तुसी इतिहास नू नजर मारो और उसनू जहन विच रखो, उसनू अपने दिमाग विच रखो कि उस दिन तो बाद गुरु साहब शरीरक तौर के उत्ते शहीद कर दिते गए, पर उस तो बाद जिन्हें हमला करना है वो गुरु दे शरीर ते नहीं कर सकता, उन्हें दो चीज़ों के उत्ते करना है, उन्हें हरमंदर साहब के उत्ते करना है, उन्हें साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उत्ते करना है। उस दिन तो बाद ये दो हमले जिहड़े है लगातार होंदे रहे। विस्तार विच ना जावां, सब तो पहला हमला साहिब श्री गुरु हरराय साहब दे हुंदियां होया, जदों उन्हां दे सुपुत्र बाबा राम राय औरंगजेब दे दरबार गए हैं ते उत्थे उन्हां नूं कहा गया ये की लिखिया है, मिट्टी मुसलमान की पैड़े पई घुमियार, डर गए, खुशामद विच आ गए, कहन लगे नहीं तुहानूं भुलेखा लगा है, मिट्टी बेईमान की लिखिया है, वो सड़ेगी, मिट्टी बेईमान दी सड़दी है। पर मैं सोच रहा सी तुसी जाओ देहरादून जाके देखो, वो कमरा अजे भी उसे तरह पिया है, अद्धा सड़िया होया है, दरवाजे धुआखे हुए है, सड़े हुए है, जिहदे विच बाबा राम राय खुद उहदे विच अंतर ध्यान होके बैठा सी, उहदे अपने मसंतां ने उहनूं जींदे नूं साड़ दित्ता सी। एक कितनी विचित्र गल है कि बाबा राम राय दा, पर एक गल है, जोत ओहा जुगत साई, जोत नूं जुगती चाहिदी है। अगर शरीर है आत्मा नहीं है, अगर तो मुर्दा है, अगर आत्मा है शरीर नहीं है तो भूत है। ये दो चीज़ों का सुमेल सी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे शरीर दे विच, गुरु शरीर दे विच एक गुरु जोत, निरंकारी जोत का प्रकाश होया। अपने शरीर दे हुंदियां गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अंगद देव जी दे उस शरीर दे विच ओ जिहड़ी है जोत उहदे विच स्थापित कीती। ये सिलसिला चलदा रहा। आम तौर के उत्ते दुनियावी तौर ते बंदे दे गुजर जाण दे बाद उहदी विरासत उहनूं मिलदी है अगलियां नूं, पर इत्थे गुरु साहब ने अपने शरीर दे हुंदियां उन्हां ने ओ जोत जिहड़ी है अगले गुरु साहब दे शरीर विच स्थापित कीती। गुरु गोबिंद सिंह साहब को जदों ये जोत ते जुगत दोनों आईयां, ये जोत ते जुगत हमेशा रही। पर एक बड़ी कमाल दी गल है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जोत जो है वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच टिका दी। जोत ये 10 पातशाहियां दी जोत है। इस करके सिख रहत मर्यादा दे पहली लाइन लिखी है कि गुरु ग्रंथ 10 पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। 10 गुरु साहिब ही निश्चित कर देते, कोई 11वां 12वां 13वां 14वां नहीं हो सकता, इस तो अलावा कोई नहीं हो सकता, 10 गुरु साहिब। हुण जुगती जिहड़ी है, क्योंकि शरीर चाहिए उसनूं चलाउण लई ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जुगती जिहड़ी है गुरु रूप खालसे दे अंदर रख देती। खालसा गुरु नहीं है, गुरु दा रूप है, गुरु रूप खालसा है, मगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ जुगती दे ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ कोई ऐसा शख्स नहीं जिहड़ा ये कहे कि ये हुक्म मुहम्मद साहब का नहीं दे सकता। कोई श्री कृष्ण के नाम से हुक्म नहीं जारी कर सकता, रामचंद्र जी के नाम से नहीं कर सकता, ईसा मसीह के नाम से नहीं कर सकता। पर अज गुरु रूप खालसा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजरी में जदों हुक्मनामे जारी करता है तो वह गुरु के हुक्म मन्ने जाते। ये बड़ी विचित्र चीज है। पर हुण देखण वाली गल है कि ये जदों दोनों हमले होंदे रहे, हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी का हाड़ मास का शरीर नहीं है, इस करके ये जोत किधरे होर जा नहीं सकती। इस करके क्या ये जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। पर इसके बाद भी होया, हमले होंदे रहे। वड्डे घल्लूकारे का टाइम याद करो। अज असी बिल्कुल उसे माहौल दे विच हां, बिल्कुल उसे माहौल विच हां जदों वड्डा घल्लूकारा होया। बहुत वड्डी गिनती में सिख शहीद हो गए, बहुत थोड़े जे सिख रह गए।
लगता सी कि हुण सिक्खी खत्म हो जाएगी, ये पंथ खत्म हो जाएगा, पंथ मुक जाएगा। पर याद करो, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं भाई मरदाना जी ने एक गल कही सी। जन्म साखी दे विच एक बड़ी कमाल दी गल अंकित है। वो एक गल कह रहे हैं गुरु नानक देव जी नूं, एक सिख गुरु नूं कह रहा है। वो कितनी नेड़ता, कितनी निकता, कितना प्यार होएगा, कितनी करीबी होणगे कि वो कह रहे हैं बाबा तेरा मेरा बहुता फर्क नहीं। फर्क तो है, बहुता फर्क नहीं। तू खुदा दा डूम, मैं तेरा डूम। तू रब दा मरासी है, मैं तेरा मरासी हां। तू रब दी उस्तत करी जा रहे, मैं तेरी करी जा रहे। यानी वो कह रहा है, सिख कह रहा है मेरा तेरा कोई फर्क नहीं। और 10वें जामे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं या मैं भेद न रंच पछानो, मेरे तुहाडे विच कोई फर्क नहीं। और फिर बड़ा कलूकारा हुंदा है। बहुत थोड़े जे सिख रह जाते, बहुत थोड़े रह जाते हैं। लग रहा है कि ये जिहड़ा बूटा लाया है ये खत्म हो जाएगा। पर उस वेले उन्हां सिखां ने जिहड़ी अरदास कीती वो साडा सुनहरी इतिहास है, सुनहरी बाब है। उस वेले सिखां ने इकट्ठर होकर अरदास कीती, हे सतगुर सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, सानू फखर है हुण साडे विच कोई खोट नहीं है। ये निरोल तत् खालसा। असी मरना चाहते हैं, सानू मौत का कोई भय नहीं। असी जान कुर्बान करनी चाहते हैं। पर एक गल याद रख, जे पंथ ना रहा तो ग्रंथ को कौन पूछेगा था। हुण जे तू अपने आप को बचाना चाहता है फिर सानू बचा। सिख अपने आप को बचाने की गल कर रहे हैं, गुरु को बचाने की खातर है। ये कितनी बड़ी गल है। और उस कल्लूकारे दे विचों सिख निकल आए बाद। पर इसके बाद ज्यों-ज्यों समा बदलिया, उस तो बाद आर्य समाज के बानी ने इतनियां बेहुदा और वाहियात उन्होंने गल्लां लिख दित्तियां। नानक शाह फकीर ने नया चलाया पंथ, इधर उधर से जोड़कर लिख मारा एक ग्रंथ। पहले चेले कर लिए, पीछे बदला भेस, सिर पर साफा बांध के रख ली ने सब केस। दयानंद ने अपनी किताब ही लिख देता। उस समय के जितने छोटे मोटे किताब थे उनको इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनवा दिया, उसकी पूजा करते। इतना ही नहीं, पिछली सदी दे विच शुरू दे विच बाबू तेजा सिंह नाम का एक व्यक्ति आया। नीली दस्तार सी, दूरी दस्तार है, खुला धड़ है, कृपान भी पाई है। और उसने भी आके गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते हमले किए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक गुरु ग्रंथ साहब है। जे बाबा राम राय का एक लफज नहीं प्रवान होया, इहदे विच कोई ऐड किया जाए, वादा किया जाए या घटाया जाए, ये गुरु ग्रंथ साहब नहीं रह जाएगा। मगर उन्होंने की प्रवान नहीं होया। उन्होंने पट्टां दी बाणी कढ़ दित्ती, भगतां दी बाणी कढ़ दित्ती, विच कुछ होर पा दित्तियां। ये हमले लगातार जारी रहे। मेरा कहने का सिर्फ इतना भावार्थ है कि हमले होंदे रहे हैं, होंदे रहणगे। सिर्फ सानू जागरूक होने की लोड़ है। जे नहीं जागांगे, फिर जे ग्रंथ नहीं रहा तो पंथ कितना रहेगा, पंथ नहीं बच सकता। उसके बाद फिर हमले हुए। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, साडी अपनी कमेटी, सिखां दी कमेटी, उन्होंने एक भानु मूर्ति लैके आंदा, आंध्रा दा बंदा। उस बंदे को पंजाबी नहीं आती, गुरमुखी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, समझ नहीं आती। उसने कंप्यूटर चुक के सारे सारिया लगा मात्रा हटा के नवा ही रूप गुरु ग्रंथ साहब का दे दिता। और दिल्ली कमेटी ने लाखां रुपए उन्होंने फीस दी। ये हमले इस तरीके दे नाल होंदे। वो हमले रुके, फिर रुकी थोड़ी गल है। फिर उसके बाद पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल उन्होंने ਜਿਹੜੇ डेरे वाले सी उन्होंने ऐलानिया इश्तिहार लगाए, तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब साडे कब्जे च है, जे बचा सकते हो बचा लो। दूसरे दिन वो गंदियां नालियां दे विच उहदे पतरे ਜਿਹੜੇ सी रोले गए। सिख हैगे, खालसा है, की किया जाए कि खालसा है। बहुत कमाल दी एक गल है। इकबाल ने एक गल कही सी, उसने एक गल कही सी, कहता शिकवा कीता सी रब नाल, कहता ऐ खुदा जितनियां नेमतां हन वो गैर मुसलमानां लई, जितनियां तकलीफां, जितनी निरादरी, जितनी बेदबी वो सारी मुसलमानां लई। ये तेरा इंसाफ है। असी तेरी खातर लड़े, असी तैनू इंट्रोड्यूस कीता, तेरी खातर बेलियां, जंगलां, पहाड़ां, रेगिस्तानां च गए। अगों फिर रब ने जवाब दिता,
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, कहता है शोर के हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते भी थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। कहता बड़ा रौला पा रहे हो, मुसलमान खत्म हो गए, मुसलमान बर्बाद हो गए। कहता मैनू दसो मुसलमान है किथे है, मैनू तो नजर नहीं आ रहे। है शोर के हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वजह में तुम और नसारा, ड्रेस ਤੁਹਾਡੀ सारी क्रिश्चियंस दी है। वजह में तुम और नसारा, तमद्दुन में हनूद, कल्चर सारे का सारा ਤੁਹਾਡਾ हिंदुओं का है। और ये कैसे मुसलमान हो कि तुम्हें देख के शर्माए यहूद, किरदार ਤੁਹਾਡਾ यहूदियों तो माड़ा है कि है दुनिया में कैसे मुसलमान हो कि तुम्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पर ये तो बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। कहते मैनू ये दसो मुसलमान हो। थोड़ा जिहा छाती मार के उतरा ही नहीं, फिर गुरु साहब ते हमले दोबारा होए। ਇਹਦਾ मतलब ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵੰਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। मगर वो छापे जा रहे हैं, वंडे जा रहे हैं और वड्डी गिनती फिर इत्थे ही बस नहीं की गई। चीन तो छुपवाए गए बल्क दे विच 4-4 गुरु ग्रंथ साहब दे एक प्लास्टिक दे विच रैप करके कार्टन दे विच लिया के और उहदे सुट्टे गए, उन्हें दब कीते गए है। ये साडे सामने और इस धरती दे उत्ते हो रहा है। ज़ौक दा एक बड़ा जबरदस्त एक ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, उसनू क्या कि अशरफुल मखलूकात है, ये इंसान सब तो उत्तम है। उस शैतान नू क्या इनू मत्था टेक, उन्हें ना कर दी कि मैं इसनू क्यों मत्था टेका। उन्हां दी फिलासफी कहंदी है कि उस रब ने फिर उस शैतान नू धरती दे उत्ते सुट दिता। हुण धार्मिक लबादा पा के इस धरती दे उत्ते आ गया वो शैतान, और धार्मिक आयतां, धार्मिक कोट्स दे के वो लोकां नू धर्म दे खिलाफ गुमराह कर रहा है। वो कहता है गया शैतान मारा एक सजदे के ना करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, न मारा नफस अम्मारा को पारे को अक्सीर कर मारा तो क्या मारा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने कह दिता कि हुण अज तो बाद गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरुआं की दे। हुण गुरु ग्रंथ साहब हुण इत्थे भी कई जिहड़े है जान बुझ के वो शैतान जिहड़े है शैतानियत भुलेखा पाते हैं। ग्रंथ गुरु नहीं है, इहदे विच ज्ञान गुरु है, फलाना गुरु है, बाणी गुरु है। सवाल है बड़ा छोटा जिहा हवाला कि जेकर साउंड है, वॉइस है, उसनू तुसी हवा दे विच है, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਜੋਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ
उसे हासिल नहीं करते, जो अपनी गिरे में हैं उसे खो भी रहे हैं। बेइल्म भी हम लोग हैं, गफलत भी है तारी, अफसोस कि अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं। हुण एक फिरका पंजाब दे विच जिन्हां नूं बड़ा सत्कारयोग किया जाता है, नामधारी, उन्होंने मुखी ने उन्होंने अपनी किताबों के मुताबिक उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते बालण पा के अग ला दी सी। हुण वो बंदे साडे प्रबंधक उन्होंने भी सत्कार दे जाते हैं, उन्होंने भी कही जाते हैं जी ये बहुत बहुत गुरसिख है। थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए कि एक दे हो सकते हैं, दो दे नहीं हो सकते। जे इत्थों कुताई की सानू सारा कुछ जिहड़ा हैगा वो सारा कुछ इत्थों ही मिलना है। काहू को परोसो है जमीन के जमाने बीच, काहू को परोसो जोर चाकरी जहाज पे, काहू को परोसो शाही पातशाही मीद, काहू को परोसो कुटुंबी करे काज पे, काहू को परोसो देवबानी और पारसी को, काहू को परोसो देवबानी और पारसी को, काहू को परोसो संतगिरी की मजात पे, काहू को परोसो चोर चाकरी चलाकी चौक, मोको तो परोसो एक ग्रंथ महाराज पे। इनिया बेनतियां पर बहुत महत्वपूर्ण है, इनू विचारो और फिर इहदे ते कार्रवाई करो। की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए, इसकी लोड़ है। नहीं तो जे ग्रंथ नहीं रहा तो पंथ नहीं रहेगा, पर पंथ है ये सोचने की गल है। इस करके इन्हां बेनतियों को प्रवान करो। होइयां भुल्लां चुक्कां दी माफी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।